السلام علیکم ARY نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ذیشان ملک اور میں ہوں زارا انصاری. یہاں شامل کریں کہ نیوز ہیڈ لائنز. FIA ٹیم پر فائرنگ اور تشدد کرنے والا محسن بیگ کا بیٹا گرفتار. حمزہ بیگ کو آج انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا. ATC اسلام آباد نے محسن بیگ کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا. گرفتاری کے لیے FIA ٹیم گھر پہنچی تو محسن بیگ نے اسلحہ تان لیا. بیٹے کے ہمراہ 2 افسران کو یرغمال بنایا. پستول کا دستہ مار کر زخمی کر دیا. براہ راست فائرنگ کی. FIA کا محسن بیگ کے گھر دوبارہ چھاپا. اہم دستاویزات قبضے میں لے لی. FIA ٹیم وفاقی وزیر مراد سعید کی شکایت پر گرفتار کرنے پہنچی تھی. سیشن کورٹ نے محسن بیگ کے گھر FIA کا چھاپا غیر قانونی قرار دے دیا. عدالت کا IG اسلام آباد کو SHO کے خلاف کارروائی کا حکم. تحریری فیصلے میں کہا گیا تھانہ ماگلہ SHO نے جعلی کارکردگی دکھانے کے لیے مقدمہ درج کیا. چھاپا بغیر سرچ وارنٹ مارا گیا. پولیس محسن بیگ کا بیان ریکارڈ کرے اور قانون کے مطابق کارروائی کرے. چھاپا مار ٹیم میں جو لوگ شامل تھے وہ چھاپا مارنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے. FIA کی وضاحت آ گئی. کہا قابل دست اندازی جرم ہو تو وفاقی ادارہ کہیں بھی گرفتاری کا اختیار رکھتا ہے. انسداد دہشت گردی نے محسن بیگ کا ریمانڈ دے دیا تو ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ ختم ہو گیا. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں مراد سعید نے FIR کرائی, پولیس نے کارروائی کی, میرا کیا لینا دینا, وہ جانے اور عدالت جانے. عدالتی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے بولے 30 کھرب عدالتی سٹے آرڈرز کی وجہ سے رکا ہوا ہے. پتہ نہیں یہ پاکستان چل کیسے رہا ہے. پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو. شہباز گل کہتے ہیں محسن بیگ نے ریاست پر گن تانی, ریاست اس کا جواب دے گی. قانونی کارروائی کا جواب بدماشی سے نہیں دیا جاتا. یہ ملکی تاریخ کا بدترین وقت ہے. مہنگائی اور سنگین مسائل کے بجائے سوال کرنے والوں سے نمٹنا بدترین حماقت ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا محسن بیگ کی گرفتاری پر رد عمل. کہا گرفتاری قابل مذمت, افسوسناک اور شرمناک ہے. مریم نواز کہتی ہیں آپ کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں ہے جس کی شان میں گستاخی پر شہریوں کے گھر پر دھاوا, سلاخوں کے پیچھے پھینکا جائے گا. آپ کی اہلیہ کا جو احترام ہے وہی میری ICU میں بے ہوش والدہ کا ہونا چاہیے تھا. جب اقتدار ہاتھ سے نکلنے لگے تو آپ جیسوں کا خوف اسی طرح سامنے آتا ہے. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے بلیدہ میں آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے. مارے جانے والے دہشت گرد کیچ میں حالیہ تخریب کاری میں ملوث تھے. بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا. ISPR کا کہنا ہے آپریشن سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا. بلوچستان کا امن و ترقی سبوتاج نہیں کرنے دیں گے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام پھٹ پڑے. حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ. کہتے ہیں غریب آدمی پہلے ہی پس رہا ہے, متوسط طبقے کا گزارا بھی ناممکن ہو گیا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں عمران نیازی کے نئے پاکستان میں غریب کی کوئی جگہ نہیں. عوام کو اس ظالم حکومت کے خلاف باہر نکلنا ہوگا. بلاول بھٹو نے کہا جاتے جاتے عمران خان نے مہنگائی کی بمباری تیز کر دی. کم از کم اقتدار کے آخری دنوں میں ہی غریب پر ترس کھا لیتے. وفاقی وزیر شبلی فراز کا پیٹرول کم استعمال کرنے کا مشورہ. بولے جب مشکل وقت آتا ہے تو زندگی پہلے جیسی نہیں گزار سکتے. پرائم منسٹر نے ڈیسیژن لیا ہوا ہے کہ عوام کے اوپر پورا بوجھ نہیں ڈالنا. لوور مڈل کلاس ہمارا ہے, جو موٹر سائیکلسٹ ہیں, چھوٹی گاڑیوں والے ہیں, اگلے چند دنوں میں ہم پروگرام اس پہ لائیں گے. وہ چیزیں اقدام کرنے والے ہیں کہ جو کہ غریب آدمی, لوور مڈل کلاس, سیلری کلاس والے لوگ ہیں, ہم چاہیں گے کہ ان کی آمدن کو بڑھائیں. آپ چھوٹی گاڑیوں اور بائک والوں کے لیے پروگرام لا رہے ہیں. وزیر خزانہ شوکت ترین نے امید دلا دی. کہتے ہیں وزیر اعظم جلد اسکیم کا اعلان کریں گے. 6 سے 8 ماہ میں مہنگائی کا زور ٹوٹے گا, چیزیں سستی ہوں گی. پاکستان پیٹرول پیدا نہیں کرتا, بین الاقوامی منڈی سے خریدتا ہے. مہنگائی کا توڑ اور آمدن پر زور, ہمارا سلوگن ہے.
खाफ लीग की पार्लिमानी पार्टी ने फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया। चौधरी परवेज इलाही ने शुरा को अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातों पर एतमाद में लिया। एलामिये के मुताबिक शुरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर तशवीश का इजहार किया। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी और पंजाब काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीली का फैसला। काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाएगा। दौरा लाहौर में वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का बल्दियाती इंतखाबात में वोट मुस्तरद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले डबल स्टैंप और दीगर वजूहात पर वोट मुस्तरद होना फिर सामने आया है। हेरा फेरी करके वोट मुस्तरद कराए जाते हैं। स्टेटस को की जानिब से वोटिंग मशीन की मुखालफत की वजह भी यही है। वज़ीर आला और वज़ीर बल्दियात की वज़ीर आज़म से मुलाकात में बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने की हिदायत। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग 29 मई को करवाने का फैसला। पंजाब में पहले मरहले में 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। लॉन्ग मार्च के लिए पीपल्स पार्टी की जोरों शोर से तैयारियां। जदीद वॉशरूम्स, किचन, एयर कंडीशन रेस्ट रूम वाले कंटेनर्स तैयार। कराची में कारकुनों से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, हम पर नाअहल, नालायक और सेलेक्टेड हुक्मरान मुसल्लत हैं। गुर्बत और बेरोजगारी इंतहा पर पहुंच गई। पाकिस्तान के लिए नौजवान क़यादत का वक्त आ चुका है। वज़ीर ममलिकत फर्रुख हबीब का जवाबी बाउंसर। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा नौकरियां फरोख्त की। रोटी कपड़ा मकान का नारा अब एक मजाक बन चुका। नौजवानों में खड़े होकर बिलावल ने मुफ्त इलाज पर सफ़ेद झूठ बोला। MQM ने तहरीक अदम एतमाद को चाय की प्याली में तूफान करार दे दिया। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का कहना है, पिछले 3 साल में अपोजिशन ने जितनी कोशिशें की नाकाम हुई। सिर्फ TV पर शोर शराबा किया जाता है। बज़ाहिर नंबर्स गेम कुछ नज़र नहीं आ रहा। MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी है। अदम एतमाद के लिए राब्ता किया गया तो मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का नवाज शरीफ के बरतानिया में मुआलिज डेविड लॉरेंस को खत। मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। लिखा, नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स की तस्दीक और जायजे के लिए हमारा नुमाइंदा आपसे मिलना चाहता है। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ की तमाम तिब्बी रिपोर्ट्स का जायजा लेना जरूरी है। साबिक वज़ीर आज़म सफ़र कर सकते हैं या नहीं, तफसीली रिपोर्ट्स के जायजे के बाद पता चलेगा। फ्लैगशिप और एवन फील्ड रेफरेंसेस में अपीलों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत और एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम और सफ्तर की जमानत के खिलाफ नैब ने अपीलें दायर कर रखी हैं। मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर की एहतसाब अदालत से सजा के खिलाफ अपील भी सुनी जाएगी। खातून अव्वल से मुताल्लिक मनगढ़ंत और बेबुनियाद मुहिम चलाई गई। जातियात पर झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। सेनेटर फैसल जावेद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास में गुफ्तगू। कहा, फेक न्यूज़ के हवाले से हतक इज़्ज़त का कानून मजबूत बनाना होगा। खातून अव्वल की तज़हीक। मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए FIA में दरखास्त दायर। दरखास्त हुकूमती रुकन आलिया हमजा ने जमा कराई। फैसल वाडा की ताहयात नाअहली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसल वाडा की ताहयात नाअहली का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन का फैसल वाडा की सेनेट की खाली नशिस्त पर चुनाव का ऐलान। वोटिंग 9 मार्च को सिंध असम्बली में होगी। कागजात नामजदगी 17 ta 19 फरवरी जमा कराए जा सकेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस एजाजुल एहसन को अहम इंतजामी जिम्मेदारियां सौंप दी। जस्टिस एजाजुल एहसन सिक्योरिटी, लाइब्रेरी और जजेस रेस्ट हाउसेस समेत कई शोबों के इंचार्ज मुकर्रर।
साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक पंजाब आसिफ अख्तर हाशमी लाहौर से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक आसिफ अख्तर हाशमी के खिलाफ 5 से ज़ायद मुकदमात चल रहे हैं। उन पर गुजरात में 135 मिलियन के अरासी की खरीदो फरोख्त में घपले का इल्ज़ाम है। पंडाल में सर ही सर, पार्किंग में गाड़ियां ही गाड़ियां। टंडोला यार में शादी की तकरीब अवामी जलसे में तब्दील। सूबाई वजीर ने शादी में पूरा हल्का बुला लिया। ज़िया अब्बास शाह रिजवी के बेटे की शादी में 30,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। कराची में डकैती के दौरान लड़की से ज्यादती के 2 मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में हलाक। मुल्जिमान ने सुरजानी टाउन में वारदात के दौरान लड़की से ज्यादती की थी। पुलिस का कहना है मुतासरा खानदान ने एक मुल्जिम को शनाख्त कर लिया। एडिशनल IG कराची का एहलकारों को 5 लाख नकद और तारीफी असनाद देने का ऐलान। वजीहा स्वाति के पहले शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में दूसरे शौहर का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद का मुल्जिम को 26 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने केस की शरीक मुल्जिमा जाहिदा की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। डॉक्टर नौशीन की पुरअसरार मौत। चांद का मेडिकल हॉस्टल आने वाले तमाम मर्दों के DNA कराने का फैसला। वाइस चांसलर डॉक्टर हाकिम अब्रो ने रजिस्ट्रार को फहरिस्त बनाने की हिदायत कर दी। कराची शाह फैसल कॉलोनी नाले से 3 साल के बच्चे की लाश मिली। अरहम 3 रोज से लापता था। सर पर तशद्दुद के निशान, मौत गला दबाने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पानी में पड़े रहने से लाश खराब हो गई। घर वालों का पड़ोसी पर कत्ल का इल्जाम। कहा इतवार को नवीद से झगड़ा हुआ था। पड़ोसी ने बदला लेने की धमकी दी थी। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के मारूफ मौसीकार और गुलकार बप्पी लहरी 69 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बॉलीवुड में बप्पी के मुनफरिद और मकबूल नगमों की धूम। बप्पी लहरी गले की बीमारी के बायस अस्पताल में जेरे इलाज थे। बप्पी लहरी सोने के जेवरात की वजह से एक खास पहचान रखते थे। वो अमरीकी रॉक स्टार एल्विस प्रेस्ले के मद्दाह थे और उनके अंदाज को इख्तियार करने के लिए सोने के जेवरात पहनते थे। HBL PSL का 7वां सीजन, मुल्तान सुल्तान्स की 7वीं कामयाबी। कराची किंग्स के खिलाफ 7 विकेटों से मैच जीत लिया। 76 रन बनाने वाले सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान प्लेयर ऑफ द मैच करार। मेगा इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। हर लम्हा पुरजोश में कहकहों का तूफान। अदाकारा आमना इलियास बनी मेहमान। खेल अब मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। PSL मैचेस पर यूनुस खान और तनवीर अहमद के जानदार तज्ज़िये और तबसरे। मुस्तफ़ा, आदि और आतिफ ने लगाया कॉमेडी का तड़का। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,26,099 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,811 रुपये और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 81 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,209 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 220 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया।